Hello friends, so today we start with another important chapter of 12th Commerce, which is Bill of Exchange. Now this chapter is relatively easy, but at the same time it is also a little bit tricky. And why it is tricky? You have to pass multiple journal entries in the books of multiple parties, and this is where the confusion comes into play. Students को ये confusion हो जाती है कि कौन सी पार्टी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करनी है, कौन सी पार्टी की बुक्स में नहीं करनी है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर आपको जर्नल एंट्रीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. अगर जर्नल एंट्रीज आपको समझ में नहीं आती है तो यू विल फाइंड दिस चैप्टर वेरी डिफिकल्ट. इसलिए मेरा पहला रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको जर्नल एंट्रीज में कोई भी इशू है तो पहले आप वो कंफ्यूजन क्लियर कर लो. एंड बिफोर वी बिगिन लेट मी टेल यू सम डूज एंड डोंट्स. जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट की टेंडेंसी होती है वो एग्जाम में एंट्रीज मगअप करके जाते हैं. दे बाय हार्ट इट एंड देन दे ट्राई टू एग्जीक्यूट इन द एग्जाम एंड इट फेल्स मिजरेबली. अनटिल एंड अनलेस आपको इस चैप्टर का लॉजिक पता नहीं है आप एग्जाम में इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. सो इन दिस वीडियो our emphasis will be on learning the logic of this chapter. Let us develop a good logic, a good understanding of this chapter और आपको इसके questions आराम से solve करते आएंगे. Now I have compiled all the concepts in this slideshow presentation. Textbook में आपके जो सारे concepts दिए हुए हैं वो मैंने यहाँ पे slideshow में डाल दिए हैं. So if you do not open the textbook and simply refer the slideshow, even then all your concepts would get cover. और screen पे focus करो, you will be able to take down the notes also which will be helpful for you to revise later on. Now bill of exchange, when we are talking about this topic or this concept, let us first understand what bill of exchange is. bill of exchange समझने के लिए आपको दो चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. First is instrument of credit and second is negotiable instrument. इन दोनों चीजों को मिला के we get bill of exchange. Now until and unless you do not understand these two concepts, again it will be difficult for you to understand this chapter because the whole chapter revolves around these two concepts. ये दो जो aspects है ये essence है bill of exchange के. Let us try to understand them one by one. Let us first understand what instrument of credit is. Now as far as accounting is concerned, what is accounting? हमने पढ़ा है 11th standard में हमें सिखाया गया है accounting is nothing but recording of business transaction. And what is business transaction? Buying and selling of goods or services or both for a consideration. There is a buyer, there is a seller. Now understanding this activity is very important because these will be the two primary parties, buyer and seller, जिनकी books में आपको record करनी होगी journal entries. And once there is a business transaction, there is an exchange of money and goods. Buyer जो goods खरीदता है वो पैसे देता है, seller जो goods बेचता है वो पैसे लेता है. And there are two ways of settling the transaction. One is by way of cash transaction. Consideration is paid right away, and credit transaction in which consideration is paid at a future date. So this chapter exists because of credit transaction. Because there are credit transaction, there is a need for bill of exchange. All right. Before we go into details of bill of exchange, let us first understand what credit flow is. Normally business में क्या होता है? How the goods reach from the consumer, from the producer to the ultimate consumer. See, first we have manufacturer. Manufacturer supplies the goods to wholesaler. Wholesaler then passes on the goods to retailer, and the retailer sells the goods to consumers. Now these activities are voluminous. ये जो एक्टिविटीज होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है. और ये जो पार्टीज है इस चेन में, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, इनको इनका अकाउंटिंग रखना पड़ता है. एंड व्हाट हैपेंस इज इन बिजनेस,
मोस्टली द ट्रांजैक्शंस हैपन ऑन क्रेडिट बेसिस. कैश ट्रांजैक्शंस कम होते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं. फॉर इंस्टेंस, इफ द मैन्युफैक्चरर इज सप्लाइंग गुड्स टू होलसेलर, he will give it to him on credit. When the wholesaler is forwarding the goods to retailer, he will again give the goods on credit. अभी retailer customer transaction का it depends whether it will happen in cash or credit, but that is irrelevant as far as this chapter is concerned. हमको ये जो सप्लाई चेन में लोग इन्वॉल्व है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना है. सो अंडरस्टैंड समथिंग, लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस स्लाइड. ये कुछ पार्टीज है हमारी. हमने जैसे अभी देखा कि वी हैव मैन्युफैक्चरर. सो मैन्युफैक्चरर विल सेल द गुड्स टू wholesaler, wholesaler will sell the goods to retailer, and retailer will then sell the goods to consumers. Now this will happen many times. Okay, the frequency will be different. Maybe there may be a daily transaction between these two parties, there may be a weekly transaction between these parties, there may be monthly transaction, there may be quarterly transaction. Okay, और हाफ ईयरली. जनरली इतना लंबा स्पैन होता नहीं है. वीकली, मंथली मोस्टली ट्रांजैक्शंस होते हैं. एंड सिंस दीज ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग ऑन क्रेडिट, द बिल विल बी settled at a future date. This person will give money to this person, retailer will give money to the wholesaler, wholesaler will give the money back to the manufacturer. और पैसे लौटाने के लिए क्रेडिट पीरियड दिया जाता है, कुछ टाइम दिया जाता है, टेन्योर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट पीरियड. एंड अगेन दिस credit period ranges, it may be anywhere around 2 months, 3 months, generally 2 months or 3 months. Now understand something, इन सारे लोगों के बीच में इतने transactions हो रहे हैं on some basis, okay, and there is a credit period of 2 months or 3 months. So by the end of this period कितने transactions हो जाएंगे, and will it be पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन? नहीं, हम सारे ट्रांजैक्शंस याद नहीं रख सकते. एंड इसमें दूसरी बात ये भी है कि सिर्फ इन पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं होगा. अ मैन्युफैक्चरर मे हैव मेनी होलसेलर टू whom he supplies. A wholesaler may again have many retailers to whom he supplies. All right, so in this process it becomes very important to record these transactions. It becomes very important to have some evidence, and this is where bill of exchange comes into play. Bill of exchange, when we say that instrument of credit it means that it serves as a documentary evidence. जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचता है तब वो बिल ऑफ एक्सचेंज बना के उसको बेचता है. जब होलसेलर रिटेलर को क्रेडिट पे गुड्स बेचता है तब वो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बना के बेचता है. एंड इट इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ओके, इट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि किसी को पैसे लेने हैं और किसी को पैसे देने हैं. That is why it has been termed as an instrument of credit. See in this slide, you will understand it properly. Since consideration is paid at a future date, there has to be something जो assure करे, मतलब जो seller को assure करे कि हाँ buyer जो है वो after the end of this tenure मेरे पैसे मुझे दे देगा. Credit transactions are recurring in nature. The volume of transaction is huge.
there are multiple parties जिनके साथ transaction होता है, and so the person who is extending credit needs to have an assurance that the debtor owes him money, consideration or money will be paid on the due date. इतना simple logic है bill of exchange का. बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं. नाउ कॉन्सेंट्रेट इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके फीचर्स भी कवर हो जाते हैं. अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. पढ़ने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये डेफिनेशन, बट वंस यू अंडरस्टैंड द लॉजिक इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मेमोराइज. पहली कंडीशन क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होनी चाहिए, मतलब इट हैज टू ऑर्डर्स दैट समबडी नीड्स टू पे. रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए उसमें, मे, यू मे पे मी, यू मस्ट पे मी, ऐसे सारे टर्म्स नहीं होने चाहिए. यू हैव टू पे मी, दिस इज हाउ सर्टनली इट शुड बी रिटन. फिर whoever is making it, whoever is drafting it, he needs to sign it, signed by the maker. डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन, किसने पे करना है ये डेफिनेटली उसमें मेंशन किया होना चाहिए, दैट हु इज द पर्सन हु नीड्स टू पे. ओनली और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन, और किसको पे करना है ये भी उसमें मेंशन होना जरूरी है. तो लेट अस क्विकली रिवाइज. इट मस्ट बी इन राइटिंग, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, जो इंसान बिल ड्राफ्ट कर रहा है, बिल बना रहा है, उसने साइन करना चाहिए. किसने पे करना है ये पता होना चाहिए, किसको पे करना है ये भी उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए. नाउ लेट अस सी what you see on the screen is a format of bill of exchange. See, you will be able to see everything, right? What is included in the definition. यहाँ पे writing में है ये, यहाँ पे unconditional order है, देखो, term months after date, pay to me or to my order, right? यहाँ पे name of drawer है जिसने ये बिल बनाया है, date है, यहाँ पे amount है, signed by the maker जिसने ये बिल ड्राफ्ट किया है उसने साइन भी किया है, और once it is accepted it will be this section has the sign of drawee. Here you have the sign of drawer. Person who makes the bill has signed here, person who will accept the bill will sign here. Accept the bill मतलब जिसको ये बिल दिया जाता है. You will understand it in the later slides. Let us move ahead. Now let us understand the next feature, negotiable. We also said that bill of exchange is a negotiable instrument. What do we understand when we say that it is negotiable? Terms can be changed, its terms can be modified. कुछ modifications उसमें हम लोग कर सकते हैं. Name of parties, tenure, जिसको पैसे देने हैं, all these things can be changed and can be transferred from one person to another person. So negotiable means that can be changed. What can be changed? The terms can be changed, and this is again next most important feature, can be transferred from one person to another. Later on, as you study this chapter in detail, this point is going to be very important. All right, let us move ahead. Negotiable instrument is governed by Negotiable Instrument Act 1881. एक separate act है इस चीज के लिए फॉर्म किया हुआ. Let us see what is the meaning of negotiable instrument. Negotiable instrument is a promissory note, bill of exchange or check payable either to the order or to the bearer. So there are three types. What are those three types? One is promissory note, one is bill of exchange, and one is check. Now check you know very well, you must have seen your parents or any other person dealing in check. चेक लिख के देते हैं बैंक में, वो प्रेजेंट करते हैं, फिर उसके अगेंस्ट पैसे मिलते हैं. बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट वर्क्स इन सिमिलर वे. ये सेम ही होते हैं विद
certain modifications. तो वो क्या है वो भी हम लोग आगे इस चैप्टर में देखेंगे. A bill of exchange is a written acknowledgement of debt and also a promise to pay the debt according to the terms of bill. Now this particular section again is very important. जैसे मैंने कहा कि सेलर को कुछ अश्योरिटी चाहिए कि हाँ आफ्टर द क्रेडिट पीरियड इज ओवर, जो भी 2 महीने 3 महीने का पीरियड है उसके बाद मुझे अपना पैसा मिल जाएगा, इसका कुछ अश्योरेंस चाहिए. उस अश्योरेंस का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज. इट इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट. अगर हम लोग बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो अग्री करता है कि हाँ आई एम इंडेप्टेड टू दिस पर्सन, इस इंसान को मुझे पैसे देने हैं, एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल पे द डेप्ट अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द बिल. ऑलराइट. A bill of exchange is generally drawn by creditor on his debtor and should be accepted by the debtor. So when we talk about buyer and seller entering into credit transaction, उनका फॉर्म चेंज हो जाता है, they become creditor and debtor. तो again when we move further in this slide you will understand it more clearly. Let us see the features of bill of exchange. Serves as a documentary evidence of debt liability. Now ये फीचर्स आप अच्छे से समझ लो, बिकॉज इफ एनी पर्सन आस्क्स यू व्हाट अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज, तो आप उसको बस ये फीचर्स समझा दो. प्राइमरी एक्सप्लेनेशन बिल ऑफ एक्सचेंज का ये है कि इट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ डेब्ट लायबिलिटी. इट मस्ट बी इन राइटिंग, हमने ऑलरेडी देख लिया. इट मस्ट बी स्टैम्प्ड, इट मस्ट बी डेटेड, it must contain order to pay certain sum of money. The order must be unconditional. The amount must be payable either to a certain person or to his order or to the holder of the instrument. Now I told you while we were studying the definition of bill of exchange कि इसको समझ लो, यही सारे इसके फीचर्स भी है. तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें इसमें कवर कर ली है. And it must be signed by the maker. So see a sample of bill of exchange again. देखो ये सारी चीजें जो लिस्ट डाउन की हुई है वो आपको इस सैंपल में दिख रही है क्या? इट इज इन राइटिंग, यस इट इज इन राइटिंग. इट मस्ट बी स्टैम्प, ये देखिए यहाँ पे स्टैम्प है. इट मस्ट बी डेटेड, देखिए यहाँ पे डेट आ गया. इट शुड कंटेन ऑर्डर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी, यस यहाँ पे ऑर्डर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी आ गया. द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल. हाँ देखो 3 months आफ्टर डेट पे मिस्टर आर और हिज ऑर्डर. कहीं भी विल यू पे, मे यू पे ऐसा वर्डिंग इस्तेमाल नहीं किया गया है. क्लियरली ऑर्डर किया गया है कि दैट यू नीड टू पे. द अमाउंट मस्ट बी पेएबल आइदर टू अ सर्टन पर्सन, सर्टन पर्सन यहाँ पे बता दिया है मिस्टर आर, और टू हिज ऑर्डर. ओके. डेफिनेट अमाउंट भी यहाँ पे है ₹1,50,000. It must be signed by the maker. Now this is the maker and this is the person to whom the bill of exchange is sent. उसने भी accept करके sign करके अपना stamp इस पे लगा दिया है. Parties to bill of exchange. अब ये बहुत ज्यादा जरूरी स्लाइड है. First party is drawer. इसको हम लोग प्राइमरी पार्टी बोलते हैं बिकॉज जनरली बायर एंड सेलर ये दो प्राइमरी पार्टीज होती है किसी भी ट्रांजैक्शन में. सो दिस पर्सन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रॉवर. ही इज द सेलर, ही इज द पर्सन हु सेल्स द बिल. सिंस दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही ऑल्सो बिकम्स द क्रेडिटर. अब ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होंगे इन पार्टीज के बारे में, तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना जरूरी है. सी फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज अ सेलर. He is a person who's selling the goods, and since he is selling the goods, he becomes the creditor. Since this is a credit transaction and he is the person selling the goods, he becomes a creditor. And he will be the person who will need assurance कि बाबा टाइम पे मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा. After the due date, I will get my money. Therefore, he draws the bill. इसीलिए इसको हम ड्रॉवर भी बोलते हैं. Next person is buyer. So if there is a seller, there has to be a buyer. Again, this is a primary party.
ही इज द ड्रॉई, ड्रॉई इसको इसके लिए बोला जाता है क्योंकि इसके ऊपर बिल बनता है, इसके ऊपर बिल फटता है, इसके नाम का बिल फटता है, फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग. नाउ अगेन दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ही इज अ पर्सन हु इज बाइंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, सो ही ओज समबडी द मनी. तो ये इस पर्सन का ये डेटर है. बिल इज ड्रॉन ऑन हिम, he accepts the bill. And then there are some third parties to the transaction. Pay. Pay का simple मतलब ये है the person to whom money is paid. Okay, pay is the person to whom money is paid. अब आप पूछोगे कि प्राइमरी पार्टीज बायर और सेलर है, एंड व्हाई आर वी पेइंग द मनी टू सम थर्ड पार्टी. सो अंडरस्टैंड, हम लोग पहले स्लाइड्स जो देख रहे थे उसमें क्लियरली लिखा था पे टू सर्टन पर्सन और टू हिज ऑर्डर. मतलब या तो पैसा जो क्रेडिटर है उसको पे करना पड़ता है और टू समवन ही ऑर्डर्स. सो इन केस द क्रेडिटर ऑर्डर्स दैट दिस इज द पर्सन यू नीड टू पे, सो ऑन द ड्यू डेट दिस पर्सन विल पे द मनी टू हिम. ओके, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड द पे. और उस हिसाब से इसका एक और नाम भी हो जाएगा, ही विल बी द पेयर. This person will always be the payer. The debtor will always be the payer. The payee may change. Payee may be the creditor himself or some third party. And who are the third parties? Endorsee. Endorsee may be somebody in the family or a friend, an actual person, bank, or any other person who has got no relevance with the transaction. So I hope you have understood the parties correctly. These are the parties to bill of exchange. And now let us understand the parties to promissory notes. ये भी आप समझ लो, bill of exchange की parties different है, promissory notes की parties different है. So bill of exchange में जहाँ तीन parties होती है, promissory notes में दो ही parties होती है, drawer, maker और द बायर, एंड ड्रॉई, पेई एंड द सेलर. अब आप कंपैरिजन देखिए, प्रीवियस स्लाइड को और इस स्लाइड को कंपेयर कीजिए. द स्टेटस हैव चेंज्ड. बिल ऑफ एक्सचेंज में है जो सेलर जो होता था, सेलर बिल ड्रॉ करता था, वो बिल बनाता था. बट आप यहां पे देखो कि जो बायर है, ही इज मेकिंग द बिल, he is drawing the bill. Okay, he is drawing the bill and giving it to this person. Alright, इतना फर्क समझ लो. आगे जब और क्लैरिटी आएगी बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रोमिसरी नोट्स में, तब आप समझ जाएंगे कि why the arrangement is of such type. अभी मैं थोड़ी देर से बात कर रहा हूं एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस, व्हाट डज इट मीन बाय एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस क्या होता है? सी, अंडरस्टैंड, द बिल will have a validity only when it is accepted. Alright, जब तक ये जो पर्सन है, debtor, the person who has to pay the bill, he does not accept it, तब तक उसको वैलिडिटी नहीं आएगी. मतलब अगर कोई इंसान है, वो कोई इंस्ट्रूमेंट लिख रहा है, आपका नाम उसमें डाल रहा है और बोल रहा है कि आपको इस डेट को मुझे इतने पैसे देने हैं, तो फर्स्ट यू नीड टू एक्सेप्ट इट, राइट? ऐसे ही कोई भी उठ के आपके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता है. सो एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. द पर्सन ऑन whom the bill is drawn needs to accept. Alright? प्रोमिसरी नोट में ये एक्सेप्टेंस का पार्ट नहीं आता है, बिकॉज द पार्टी ड्रॉइंग द बिल इज द डेटर.
Let us understand what type of acceptances are. General acceptance, DROI accepts bill without any charge or condition. So जिसके ऊपर बिल चार्ज किया गया है वो विदाउट एनी कंडीशन इसे एक्सेप्ट कर लेता है. And then there is qualified acceptance. DROI accepts the bill with certain qualifications and conditions. मतलब जिसके ऊपर बिल बना है वो इंसान बोलेगा कि मुझे इसमें के कुछ टर्म्स अग्री नहीं है, we need to change those terms, and if those terms are changed and then the party accepts it, it is called as qualified acceptance. General acceptance क्या है? As it is. As it is, जैसे बिल बना है वैसे एक्सेप्ट कर लिया है. And qualified acceptance with some changes. So some changes are made and then the bill is accepted. Okay, and what are these changes? The change might be change of time. बिल का टेन्योर चेंज हो सकता है, प्लेस चेंज हो सकती है. ये इंसान बोल सकता है कि आई विल पे ओनली एट दिस पर्टिकुलर प्लेस. अमाउंट चेंज हो सकती है, अगर बार्गेनिंग होती है, डिस्काउंट होती है या कोई इशू आता है तो द अमाउंट दैट नीड्स टू बी पेड मे बी चेंज. पार्टीज में चेंज, जैसे मैंने आपको बोला कि जो क्रेडिटर है वो बोल सकता है कि अरे बाबा आप इस बंदे को ये जो पेमेंट है वो कर दो मेरे बिहाफ पे, वो कलेक्ट कर लेगा. सो द डेटर में नॉट ऑलवेज एग्री. डेटर बोलेगा कि नहीं मैंने आपसे ट्रांजैक्शन किया है तो मैं आपको ही पैसे दूंगा. एंड कंडीशन, देयर मे बी एनी अदर कंडीशन जो चेंज हो सकती है. सो इफ anything in the original bill is changed and then it is accepted, it is called qualified acceptance. Otherwise it is a general acceptance. Now let us see what are the types of bill of exchange are. First is trade bill, drawn by debtor and accepted by creditor for genuine transaction. मतलब ये जो transaction होता है 100% genuine होता है. It is in the regular course of business. कोई इसमें अरेंजमेंट नहीं होती है, कोई इसमें हिडन इंटेंशन नहीं होता है. देन देयर इज अकोमोडेशन बिल, ड्रॉन फॉर म्यूचुअल फाइनेंशियल अकोमोडेशन ऑफ द पार्टीज. मतलब बहुत सी प्रैक्टिसेस होती है, अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो दे में ड्रॉ अ सूडो बिल. मतलब इसमें ट्रांजैक्शन नहीं होता है, only for the mutual benefit of both the parties. ये बिल ड्रॉ किया जाता है, जैसे दो पार्टीज ने बिल बना लिया, बैंक से पैसे ले लिए, आज जरूरत है तो बाद में जब पैसा आ गया तब बैंक को पैसे दे दिए. दिस इज ऑल्सो वन टाइप. इनलैंड बिल, ड्रॉन बाय टू पार्टीज located and reside in the same country, payable in the country itself. तो इनलैंड बिल का मतलब है जो पार्टीज है दे आर लोकल, दे रिसाइड इन द सेम कंट्री. ओके, आई एम सेइंग कंट्री, एंड द बिल इज पेएबल विद इन द कंट्री इटसेल्फ. ऑलराइट. And then there is foreign bill drawn in one country and made payable in another country. This is relatively easy to understand. Important terms, कुछ terms समझ लेते हैं जो बार बार आपको यूज करने पड़ेंगे. अब एक टर्म बार बार आपको सुनाई देगा, वो है बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल मतलब क्या होता है? In the books of drawer, this instrument will be called as bills receivable. What instrument? Bill of exchange will be called as bills receivable. और देखिए, since he is supposed to receive the money, it will be called as bills receivable. It will be an asset for him. In the books of DROI, it is called bills payable, right? The debtor needs to pay the money. Debtor is also called as DROI. In his books, it will be called as bills payable and it will be a liability in his books.
ऑनर व्हेन द ड्रॉई पेज द बिल ऑन द ड्यू डेट। ट्रांजैक्शन हो गया, क्रेडिट पीरियड डिसाइड हो गया, क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया और जो डेट डिसाइड हुई थी उस डेट को पेमेंट हो गया, उस इवेंट को बोलते हैं ऑनरिंग ऑफ बिल। डिसऑनर इज अपोजिट। ट्रांजैक्शन हो गया, क्रेडिट पीरियड तय हो गया, क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया और क्रेडिट पीरियड खत्म होने पे भी ड्यू डेट पे बिल पे नहीं हुआ, इस इवेंट को बोलते हैं डिसऑनर। There are two types of dishonor. Dishonor by non-acceptance, अगर बिल एक्सेप्ट ही नहीं किया तो in that case also it becomes dishonor, and dishonor by non-payment, ड्यू डेट आ गई और बिल पे नहीं किया तो भी उसे dishonor बोलते हैं। And there arises one more important term which is due date. ये एक टोटली अलग कंसेप्ट है। बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ते वक्त ड्यू डेट सीखना भी बहुत जरूरी है। अगले स्लाइड्स में मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा व्हाट अ ड्यू डेट इज। नोटिंग चार्जेस, अभी डिसऑनर की केस से अराइज होता है नोटिंग चार्जेस। नाउ व्हाट इज नोटिंग चार्जेस? लेट मी गिव यू अ लिटिल आइडिया। व्हेन अ बिल इज डिसऑनर्ड इट नीड्स टू बी रिकॉर्डेड। अगर क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया है और तो भी पार्टी ने बिल पे नहीं किया है तो उसका रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके अगर कोई लीगल सूट फाइल होता है तो आपको ये प्रूव करना जरूरी हो जाता है कि हाँ ये बिल डिसऑनर हुआ था। तो उस केस में नोटिंग करवाना पड़ता है। व्हाट इज नोटिंग? जिस आदमी के पास बिल होता है, पर्सन हु इज होल्डिंग द बिल, वो जाता है नोटरी पब्लिक के पास, विच इज मोस्टली एन एडवोकेट। वो जाके उसको बताता है कि लुक दिस बिल हैज बीन डिसऑनर्ड, और वो उसे स्टैम्प करके देता है कि यस ऑन दिस डेट दिस बिल वाज डिसऑनर्ड, इट वाज नॉट पेड, एंड दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय नोटिंग। एंड दिस एक्सरसाइज नीड्स सम आउटफ्लो ऑफ मनी। कोई भी नोटरी आपको फ्री में ये करके नहीं देगा, ही विल चार्ज समथिंग फॉर इट, एंड वॉट एवर इज पेड फॉर नोटिंग ऑफ डिसऑनर्ड बिल is called as noting charges. Look on the screen, look at the slide. Notary public charges certain fees which is known as noting charges, initially paid by the holder of the bill, recovered from the drawee. तो जो बंदा नोटिंग करता है, who does it? Person who is holding the bill, person who has the bill, he pays, but it is subsequently recovered from the drawee. This should tell you that it is an expense of drawing. Okay? बाद में इसका reimbursement होता है। The drawee gives the money back to the person who is holding the bill. Drawee is the debtor जिसने पैसे दिए नहीं है। Holder, person who is in possession of bill. Holder का simple meaning क्या है? Person who holds the bill. Holder in due course, person who obtains the negotiable instrument for valuable consideration in good faith, right? Without any defects to the title. Without any defects in title. मतलब कोई इसमें लीगल इश्यूज नहीं है। ऐसा बिल अगर किसी के पास जाता है तो इट इज कॉल्ड, ही इज कॉल्ड एज होल्डर इन ड्यू कोर्स। नाउ लेट अस सी इलस्ट्रेशन 1। ये भी आपके इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है, यू आर आस्क्ड टू ड्राफ्ट सर्टेन बिल्स। अराउंड 5 to 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्राफ्ट करना भी जरूरी है, आपको आना चाहिए। सो दिस इज एन इलस्ट्रेशन टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। रीड द इलस्ट्रेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवर इज मिस्टर प्रकाश राव, 648 कोरल प्लाजा, एसबी रोड, पुणे। ये उसका एड्रेस दिया हुआ है। ड्रॉई इज मिस्टर राहुल देव, 236 राजापुर रोड, जलगांव। Amount 44,500. Tenure of the bill
is 3 months. Date of the bill 3rd June 2019. Date of acceptance 7th June 2019. So let us first try to understand what is happening. This person is the seller. This person is the buyer. He has sold goods on credit. The tenure of repayment is 3 months. Okay, and two dates are given to you. Date of bill, this is the date when the bill was made, bill was drawn, and date of acceptance. Okay, date of acceptance, when the debtor, the buyer, accepted the bill. So this date of bill is concerned with this person when he made the bill, and this is concerned with this person when he accepted the bill. अब ये जो सारा समरी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमको एक फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है. दिस इज ड्राफ्टिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. तो पहले तो यू ड्रॉ दिस स्क्वायर फॉर्मेट, मेंशन दैट दिस इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. ड्रॉ टू कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम में स्टैम्प, नेक्स्ट कॉलम में अमाउंट. रिमेंबर इट वाज रिटन, इट शुड बी स्टैम्प्ड. ओके, तो ये एक्सरसाइज आपने कर लेनी है, इसी सीक्वेंस में करनी है. थर्ड, मेंशन द एड्रेस ऑफ द ड्रॉवर. दिस इज द एड्रेस ऑफ द ड्रॉवर. ड्रॉवर इज द पर्सन हु इज द सेलर. राइट, ये देखिए इसका जो एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वही यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है. एंड देन फोर्थ, your unconditional order 3 months after date. See, the tenure of the bill is 3 months. 3 months after date, pay to me. Now this person is making the bill, Prakash Rao is making the bill, so he is saying pay to me or to my order sum of rupees 44,500 only for the value received. All right, signed by the maker. Prakash Rao ने यहाँ पे साइन कर लिया है. टू, किसके ऊपर ये बिल ड्रॉ किया गया है? हु इज द ड्रॉई? हु इज द बायर? ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. लुक ओवर हियर, ये जो उसका एड्रेस मेंशन किया हुआ है राजापुर रोड जलगांव, वही यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ दिखेगा. और उसने एक्सेप्ट किया है बिल 7 जून को, 7 जून 2009, वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. एंड व्हाट टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस दिस इज? Since the terms of the bills are not changed, you may call it a general acceptance. So ये information आपको एग्जाम में दी जाएगी, and based on that you have to make a simple format like this. There are other illustrations as well, उनको देख लेते हैं, फिर आपको ज्यादा clarity इसमें आएगी. From the following information, prepare a format of bill of exchange. Drawer Mr. Mukund Desai, number 14, Heritage Height, Nagpur. तो जैसे मैं कर रहा हूं यहाँ पे, आप भी इसको प्रैक्टिस बना लो. आप यहाँ पे इसको डिकोड कर लिया करो. He is the drawer, he is also the seller. Okay. Drawee Mr. Yogesh Tilak, Narayanpet, Pune. So he is the drawee because the bill is drawn on him. He is the buyer. और एक और चीज हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. Let us call him creditor since he is extending credit, and let us call him debtor since he is the person who is supposed to pay. तो ये प्रैक्टिस करते रहो, आपको आदत लग जाएगी. यू विल बी एबल टू इंटरचेंजेबली यूज दिस टर्म्स. अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे 30,000. टेन्योर ऑफ द बिल इज 90 days. ओके,
So tenure is 3 days. Now if you see a difference, in the first bill the tenure was given to us in months and now the tenure is given to us in days. तो इससे हमको ये पता चलता है कि the due date may be in months or it may be in days. ये ध्यान से समझ लो, आगे जब हम ड्यू डेट का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब ये चीज काम में आएगी. अगेन यहाँ पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया हुआ है. किस डेट को ये बिल एक्सेप्ट किया है एंड नेम ऑफ द पेई इज गिवन. सो अंडरस्टैंड हियर the bill is to be paid to a third party. All right, ये जो पर्सन है मिस्टर मुकुंद देसाई हु इज ड्रॉइंग द बिल, उसको बिल पे नहीं करना है. ही इज डायरेक्टिंग दैट द बिल नीड्स टू बी पेड टू दिस पर्सन. तो अभी इस किस्म का बिल कैसे बनाना है वो हम देख लेते हैं. हमें क्या करना है, पहले हमने पिछली स्लाइड में देखा बिल ऑफ एक्सचेंज मेंशन कर देना है, फिर हमें स्टैम्प का बॉक्स बना लेना है, फिर हमें अमाउंट का बॉक्स बना लेना है, फिर द पर्सन हु इज ड्रॉइंग द बिल, ड्रॉवर, सेलर, उसके डिटेल्स, नेम एंड एड्रेस हमें यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने हैं, यहाँ पे प्रेजेंट करने हैं. एंड नाउ the order, the fifth part is order, unconditional order. 90 days after date, paid to Shravan Dave. All right, इसमें इसने मेंशन नहीं किया है pay to me or to my order, इसने straight away यहाँ पे pay का नाम मेंशन कर दिया है. So pay to Shravan Dave Panvel or his order. So there may be a person who may collect the money on his behalf, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और his order sum of ₹30,000 only for the value received. साइन उसने कर दिया, it is signed by the maker. 2 उसने मेंशन कर दिया. ये बिल किस पे ड्रॉ किया गया है, this person is the drawee, the debtor. ये देखिए ये जो डिटेल्स है योगेश तिलक, नारायणपेट, पुणे, वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है. यहाँ पे there seems to be some drafting mistake, ignore this, this is supposed to be Pune. Alright, and he has accepted. यहाँ पे date of acceptance दिया हुआ है 20th जुलाई, वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है. Now understand one more thing, दो चीज यहाँ पे बार बार आ रही है. हमने 2 ड्राफ्टिंग देखे, जो 2 चीजें आ रही है वो है डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. तो अभी इतना समझ लो कि इन दोनों में फर्क है. क्या फर्क है, इसका रेलेवेंस क्या है, ये हम लोग आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे. बट राइट नाउ अंडरस्टैंड, date of bill is different, date of acceptance is different. Date of bill is concerned with the drawer, person who draws the bill. Date of acceptance is concerned with the drawee, person on whom the bill is drawn. Let us move on to the next illustration. ये कुछ बिल के टाइप्स है, आफ्टर साइट वगैरह वो आप इग्नोर करो, बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे तब आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी. Anuradha Patil, 37A ICC Towers, Gurgaon, Mumbai, drew a bill on 23rd January 2020 for 57,450. Bill was drawn for 2 months after sight on Shanti Vishwakarma, number 43, Bhosle Nagar, Solapur, payable to Shamla Kate, Nasik. The bill was accepted on 27th January. So let us decode it again. Who's the maker? Anuradha Patil. Clearly वहां पे लिखा हुआ है that Anuradha Patil is the person
who has drawn a bill. किस पे ड्रॉ किया गया है? Who is the drawee? शांति विश्वकर्मा. शांति विश्वकर्मा. टेन्योर क्या है बिल का? 2 months. 2 months में ये बिल पे करना है. और देयर इज अ थर्ड पार्टी. ये बिल शांति विश्वकर्मा को पे नहीं करना है, ये बिल पे करना है श्यामला काटे को. तो चलो ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं. स्क्वायर बना लो. स्क्वायर में सबसे पहली चीज लिखो बिल ऑफ एक्सचेंज. स्टैम्प बना लो. अमाउंट लिख दो 57,450. This is the amount of the bill. This person is the maker, drawer. इसके डिटेल्स यहाँ पे प्रेजेंट कर दो. Then you have to mention the order, unconditional order. 2 months after site, pay to श्यामला काटे. See, यहाँ पे पे कोई और है इसलिए मेकर ने अपना नाम नहीं लिखा. और हर ऑर्डर a sum of rupees 57,450 only. Generally this amount over here is written in words. Okay, and for the value received, ये customary है, ये हम लोग लिखते ही है. Signed by the maker. ड्रॉई का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है. This person is the drawee and he has or she has accepted the bill. Okay, and again this is general acceptance because कोई टर्म्स बिल के मॉडिफाई हुए नहीं है. तो अब तक आपने देखा होगा अगर आप ये प्रोसेस को समझ ले तो इट बिकम्स रिलेटिवली इजी. तो बिल ऑफ एक्सचेंज जब आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, पहले तो आप ये याद रखना कि देयर आर 7 स्टेप्स, मतलब आप कोई स्टेप भूलोगे नहीं. और हमने 7 स्टेप्स का सीक्वेंस कैसे याद रखा है और क्या उसका फ्लो रखा है. फर्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे लिख लीजिए, देन स्टैम्प और अमाउंट के बॉक्सेस बना लीजिए, देन जो मेकर है उसके डिटेल्स प्रेजेंट कर दीजिए, फिर ये जो ऑर्डर है वो आप लिख लीजिए, साइंड बाय द मेकर. उसके बाद द ड्रॉई, द पर्सन ऑन होम द बिल इज ड्रॉन, ये आप समझ लीजिए, एंड देन एक्सेप्टेंस. तो इससे जो भी फीचर्स है, जो भी एसेंशियल्स ऑफ बिल ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो आपकी छूटेंगे नहीं, एंड एग्जाम में यू विल बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स. Let us move on to the next illustration. Prepare a format of bill of exchange from the following details. Mr. Amol Sane, 42, Gangadham, MG Road, Ratnagiri, draws a 45 days bill on Mrs. Sagarika Mane, 345, Kumthekar Road, Pune, for 18,750 on 1st March 2020, which was accepted on 4th March 2020 for 15,000 only by Mrs. Sagarika Mane. तो अब ये समझ लो ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस है और कंडीशन जो है वो अमाउंट की है. ओके, द बिल वाज ओरिजिनली ड्रॉन फॉर 18,750 बट इट वाज एक्सेप्टेड ओनली फॉर 15,000, सो रफली 3,750 का मॉडिफिकेशन है इस बिल में. ओके, इसको डिकोड कर लेते हैं. पहले तो हु इज द ड्रॉवर, अमोल साने. Who's the drawee? Sagarika. There is no pay
in this particular question, what is the tenure? The tenure is 45 days. So this bill is in days. ये सारा आपको ऑर्डर में लिखना पड़ता है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट. एंड कोई अदर इंफॉर्मेशन तो रेलेवेंट नहीं है. यस, अमाउंट ओनली फॉर 15,000 it is accepted. All right. And then the date of bill and date of acceptance. अभी स्टूडेंट्स को बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि क्वेश्चन में दो अमाउंट्स दी हुई है. वन अमाउंट इज 18,750 जो कि बिल की ओरिजिनल अमाउंट है, एंड देन देयर इज दिस अदर अमाउंट 15,000 जो कि मॉडिफाइड अमाउंट है. तो इसमें से कौन सी अमाउंट हमें लिखनी है, इस पे बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है. तो आपको ये दोनों अमाउंट्स मेंशन करनी है. कहाँ और कैसे मेंशन करनी है मैं आपको बताता हूँ. चलिए हमारा सीक्वेंस शुरू करते हैं. फर्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे लिख लेना है, सेकंड स्टैम्प का बॉक्स बना लेना है, और थर्ड अमाउंट का बॉक्स बना लेना है. तो अभी यहाँ पे देखिए, ये जो ओरिजिनल अमाउंट है 18,750 उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है. थर्ड, एज यूजुअल जो हमारा ड्रॉवर या मेकर है उसके डिटेल्स हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. नाउ व्हेन यू आर राइटिंग द ऑर्डर, जब आप ये ऑर्डर लिख रहे हो तब भी आपको ओरिजिनल अमाउंट ही मेंशन करनी है, 18,715 ओनली, क्योंकि ड्रॉवर जो है उसके हिसाब से ये अमाउंट उसकी ड्यू है, 18,750 रुपीज इज ड्यू, सो ही विल मेंशन दैट अमाउंट. लेट अस रीड द ऑर्डर. 45 डेज आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर. अब यहाँ पे पेई नहीं है, थर्ड पर्सन नहीं है. द ड्रॉवर, द मेकर हिमसेल्फ इज द पेई ओवर हियर. देयरफॉर उसने लिखा है पे टू मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 18,750 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. यहाँ पे उसने साइन कर दिया, मेंशन कर दिया ड्रॉई किसके ऊपर ये बिल ड्रॉ किया गया है. एंड नाउ दिस पार्ट, ये जो पार्ट है एक्सेप्टेंस, यहां आप देखो यहां पे 15,000 के लिए एक्सेप्ट हुआ है. तो ये जो अमाउंट है, ओके, जो कंडीशनल अमाउंट है वो एक्सेप्टर मेंशन करेगा, वो ड्रॉई मेंशन करेगा. जब वो बिल एक्सेप्ट करेगा तब वो मेंशन कर देगा कि आई हैव एक्सेप्टेड द बिल फॉर 15,000 ओनली. I hope this is clear. Let's move on to the next illustration. Now again, this is a case of qualified acceptance. The qualification is of time. यहाँ पे tenure change हो रहा है. चलिए पढ़ते हैं. Partners of Neeraja Publishing House, Nariman Point, Mumbai, Sameer Gupta draws a bill of exchange for 1 month on 9th February 2020 for 62,000 on Namrata Kokil, Panvel Road, Kharghar, payable to MS Vijay Traders, Lonavala. The bill was accepted on the same day for 2 months. All right. तो अभी इसमें हम लोग पार्टीज देख लेते हैं. There is a drawer. His name is Neeraja Publishing House. So drawer here is a firm. This may also be a case, it may not always be a person. फर्म के नाम से भी बिल बन सकता है. ड्रॉई जो है वो है नम्रता कोकिल. इसमें भी पेई है. So this person, drawer, wants the amount to be paid to MS Vidya Traders. Okay. Now, date
ऑफ बिल है और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है। इसमें जो सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट है वो है टेन्योर। देखो, मेकर ने, ड्रॉवर ने बिल बनाया है 1 मंथ के लिए, he expects to receive the payment in a month। ड्रॉवी ने जो है एक्सेप्ट किया 2 मंथ्स के लिए। ओके, सो इट इज अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, qualified as to time। Let us see the drafting। अब तक आपको समझ में आ गया होगा सीक्वेंस। तो चलिए बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स में सबसे पहले लिख लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट स्टैम्प का बॉक्स बना लेते हैं। थर्ड अमाउंट का बॉक्स बना लेते हैं। फोर्थ ड्रॉवर मेकर के डिटेल्स हम लोग मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। ओके, फिफ्थ हम लोग ऑर्डर लिख लेते हैं। सो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेई है। ओके, द ड्रॉवर वांट्स दैट द ड्रॉई शुड पे अमाउंट टू सम अदर पर्सन, इसलिए इसका वर्डिंग अभी चेंज हो जाएगा। 1 मंथ आफ्टर डेट pay to MS Vaidya Traders Lonavala or their order a sum of rupees 62,000 only for the value received। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी है। 2 टेन्योर है, 1 मंथ्स और 2 मंथ्स। बिल बनाया 1 मंथ के लिए है, एक्सेप्ट किया 2 मंथ्स के लिए है, तो सर हम लोग कौन सा टेन्योर लिखे? अभी देखिए, फ्रॉम द मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू ही हैड ड्राफ्टेड द बिल फॉर 1 मंथ, इसीलिए वो यहां पे मेंशन करेगा 1 मंथ, राइट। नेक्स्ट हमारे प्रोसेस में, ड्राफ्टिंग के प्रोसेस में हमें लिखना है सिग्नेचर साइंड बाय द मेकर, एंड देन हमें मेंशन करना है ड्रॉई, द पर्सन ऑन whom the bill is drawn, and then acceptance। तो अभी ये जो acceptance है, अभी यहां पे ये एक्सेप्ट किया हुआ है इसने, यहां पे इसने मेंशन किया हुआ है 2 मंथ्स। देखिए, ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है जब उसने एक्सेप्ट किया, और यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया है 2 मंथ्स कि आई विल पे यू आफ्टर 2 मंथ्स। एंड एज यू कैन सी ओवर हियर सम change has happened। earlier I told you that there were 7 steps, but now I can see that there are 8 steps तो मे बी प्रीवियस प्रॉब्लम में कोई स्टेप हमारा स्किप हो गया होगा। लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 and 8। okay, so the drafting of bill, आप थोड़ा करेक्शन कर लो, it has 8 steps। ओके, शायद मैंने पिछले इसमें स्टैम्प और अमाउंट के कॉलम को एक ही काउंट कर लिया। एंड नाउ द 6th illustration। prepare a format of bill of exchange from the following details। अब this is a demand bill। okay, what is a demand bill? demand bill का मतलब है payment has to be made on demand। all right, whenever it is demanded from the party, it has to pay the bill। so in this case there is no tenure। आपको ऐसे बिल में टेन्योर मेंशन किया हुआ नहीं दिखेगा, उस वक्त समझ जाना कि ये डिमांड बिल है। तो इसमें वर्डिंग्स थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, कैसे चेंज होगी वो हम लोग देखेंगे। लेट अस डिकोड द बिल। पहले हम लोग देख लेते हैं हु इज द ड्रॉवर।
drawer Kedar Pandit. Let us see who is the drawee. Drawee is Gauri Mule. ऑलराइट, अमाउंट आपको यहां दिया हुआ है 38,740. डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आपको दिया है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. तो आपको क्या नहीं दिया इस बिल में, आपको जो है टेन्योर ऑफ बिल दिया नहीं है. दैट मीन्स whenever the drawer, the creditor will demand the drawee, the debtor will have to pay the bill. So let us begin the drafting. First step, after drawing the boxes, write that it is a bill of exchange. Next step, write it is a stamp. After that, write the amount 38,740, which is the amount of the bill. Fourth step, the details of the drawer maker आपको यहां मेंशन कर देनी है. Fifth step is the order. Okay, now see over here. Normally यहां पर tenure मेंशन होता था, हम लोग बोलते थे 45 days after date, 3 months after date. अब यहां पे शुरू कैसे हो रहा है ये देखो, on demand, pay to me or my order. So how does the bill start? On demand. Tenure नहीं है तो यहाँ पे आपको लिख देना है on demand. On demand, pay to me or my order a sum of rupees 38,740 only for the value received. Next, हमें यहाँ पे साइन दिखा देना है, signed by the maker. उसके बाद ड्रॉई की डिटेल्स हमें यहां पे लिखनी है एंड देन एक्सेप्टेंस, जो भी एक्नॉलेजमेंट है वो हमको यहाँ पे प्रेजेंट कर देना है. एक्सेप्टेड बाय गौरी मुड़े. डेट ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पे मेंशन कर दी है, देखिए 17 अगस्त 2019. सो बेसिकली अभी ये समझ लो कि इंफॉर्मेशन में जो सारी क्वेश्चन में जो सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो आपको इसमें इनकॉर्पोरेट करनी है, ईच एंड एवरीथिंग, एंड रेक्टिफाई इट अ लिटिल बिट. पहले मैंने आपको बोला था कि ड्राफ्टिंग के 7 स्टेप्स हैं. 7 स्टेप्स आप भूल जाइए, एक स्टेप हमारी स्किप हो गई थी. देयर आर 8 स्टेप्स. फर्स्ट इज मेंशन दैट इट इज बिल ऑफ एक्सचेंज. सेकंड, ड्रॉ द स्टैम्प कॉलम. थर्ड, ड्रॉ द अमाउंट कॉलम. फोर्थ, मेकर ड्रॉवर के डिटेल्स आप यहाँ पे लिख दो. फिफ्थ, ऑर्डर लिख दो. सिक्स्थ, साइंड बाय द मेकर. सेवेंथ, ड्रॉई के डिटेल्स इनकॉर्पोरेट कर दो. एंड एट्थ, एक्सेप्टेंस आप यहाँ पे बता दो. ओके, सो इन टुडेज वीडियो वी अंडरस्टूड द बेसिक व्हाट बिल ऑफ एक्सचेंज इज, व्हाट इज द पर्पस, एंड वी ऑल्सो सॉ ड्राफ्टिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. एक्चुअल बिल ऑफ एक्सचेंज होता कैसे है ये हमने सीख लिया है.